A very good morning, good afternoon, or good evening to everyone who is listening this particular video of mine. Myself, Muskan Rajkotia, and I'm here to discuss on the topic Section 43 of the Companies Act 2013. That is kinds of share capital. So, without wasting any time, let's get into it. So before coming on to the topic that is kinds or types of share capital, first we'll need to understand what's the meaning of the term share. Okay, so section 2 clause 84 of the Companies Act 2013 defines the share as share in the share capital of the company, which includes stock. See, now see everyone, let's suppose if this is the share capital of the company, okay, if this is the entire circle is the share capital of the company, okay, and if example you are holding 1% share of that company, 1% share of that company, so you are holding this much amount, this much portion from entire share capital of the company, correct? So which means, which defines share is the share in the share means hissa, this share means hissa, the part, the portion, hissa, okay, share in the share capital of the company, share means ye hissa in the entire share capital of the company, which includes stock. Am I clear to each and every one? Yes. Okay, now types of share capital. So what are the different types of share capital? Okay, we all know that share capital are of two types. Okay, first is equity share capital and second one is preference share capital. Clear? Now, equity share capital, the most easiest definition you can ever have. Okay, equity share capital means the share capital which are not preference share capital. See, I'm not kidding. Okay. With reference to the company limited by share means all the share capital which is not preference share capital. Clear? Now, equity share capital are further of two types. Okay. First one is with voting rights and second one is with differential rights. Okay. With differential rights as to voting, as to dividend and so on. Okay. So first one is with voting rights and second one is differential voting rights. Okay. Next is preference share capital. Okay, so what's the meaning of the term preference share capital? Preference share capital with reference to the company limited by shares means that part of issued share capital. Okay, authorized share capital is the entire sum. Okay, जिसके beyond the company cannot issue. Okay, जिसके beyond आपके MOA में that amount is specified. Okay, that is also known as registered capital or nominal capital. Okay, then उस पर्टिकुलर अमाउंट से द कंपनी जो इशू करती है कुछ सम ऑफ मनी, दैट इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल. इशू करती है किसको सर? पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज. ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज और वुड कैरी, अभी कैरी कर रहा है या फ्यूचर में कैरी कर सकता है. ठीक है, अ प्रेफरेंशियल राइट एज द नेम सजेस्ट, preference shares means you are giving them preference, you are giving them priority. ठीक है, with respect to payment of dividend. एक बात बताओ यार, अगर कंपनी के पास एग्जांपल डिविडेंड आपको पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी विल repay the dividend. ठीक है, कंपनी विल पे द डिविडेंड टू फर्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड अगर इनकेस अगर कुछ अमाउंट लेफ्ट होगा देन द कंपनी विल इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर? नेक्स्ट इज रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ठीक है, वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो इस केस में भी किसको आप प्रायोरिटी में रखोगे? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. क्लियर? यस पीपल, चलो आगे बढ़ते हैं जान. चलो नाउ यहाँ पे हमने देखा था कि यार टीवीआर आपको इशू करना है. ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर जो होता है वो दो टाइप के होता है, विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ठीक है, तो यार अगर कोई कंपनी को डीवीआर इशू करने हैं, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले, इफ द कंपनी वांट्स टू इशू एनी शेयर्स देन the company needs to comply the following conditions or specific conditions which are being prescribed in law. ठीक है, so देखो यहाँ पे क्या लिखा है, with differential voting rights as to dividend voting or otherwise in accordance with the rules as may be prescribed, and the rules which are prescribed are here. ठीक है, रूल 4 कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014. ठीक है, सो कंडीशंस टू कंप्लाई फॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ठीक है, देखो
Rule 4, sub rule 1, ठीक है, no company limited by share shall issue the equity share capital with differential rights as to dividend, voting or otherwise unless it complies with the following conditions, namely, first, article of association of the company authorizes the issue of shares with differential rights, ठीक है। तो आपका जब तक एओए आपका स्पेसिफाई नहीं करेगा तब तक आप सेंड नहीं कर सकते, तब तक आप नहीं कर सकते इशू, क्या, डीवीआर, ओके, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है, तब तक आप नहीं कर सकते, कब तक, जब तक आपका एओए ऑथराइज नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, देखो दो टाइप के रेजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, क्लियर। नाउ जब तक आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करते, कब, बोर्ड मीटिंग में मैम कि जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में चलेगा क्या, नो नॉट नेवर, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, जब तक आप ओआर आप पास नहीं करते, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप पास नहीं करते, कब, जनरल मीटिंग में, तब तक नहीं कर सकते आप इशू डीवीआरस, क्लियर, यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो आपके एग्जाम में एज अ केस स्टडी भी आ सकता है, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके जो डीवीआर है, अगर वो लिस्ट, अगर वो आपका लिस्टेड है, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो इस केस में क्या कंडीशन है, इस केस में कैन इट लाइक ओवर एट जनरल मीटिंग, क्या इट वर्क, नो, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। इस केस में को क्या करना पड़ेगा, सच शेयर शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट, जनरल मीटिंग, लेकिन पहले ओआर था, अगर लिस्टेड नहीं है तो नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर आपके डीवीआर से लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट, थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज अ कैच एंड यहाँ आपका जो है वो केस स्टडी भी बन सकता है। आई होप आई एम क्लियर, यस। नेक्स्ट इज अच्छा, ये आपका जो पॉइंट्स है ना आपके, तो दैट इज बीन रिमूव्ड, ठीक है। सी एंड डी वाला जो है दैट इज बीन रिमूव, ठीक है, लेटेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट इज आपका द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट डिसाइडेड टू इशू सच शेयर्स। आज अगर कंपनी ने सोचा यार कि ठीक है अपन सोचते हैं कि ठीक है अपन डीवीआर इशू करेंगे, ठीक है, सो उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स जो है कंपनी जो है वो डिफॉल्ट नहीं की होनी चाहिए, किसमें, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। बी क्लियर कि दिस इज द वर्ड एंड, नॉट और, ठीक है। मींस यहाँ पे अगर आपको एक डाउट हो सकता है या एज ए केस स्टडी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने जो वो हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स बट not defaulted in filing the annual returns, ठीक है। तो can company issue DVRs? तो answer is no, because here the word is and means आपको दोनों means financial statements plus annual return दोनों आपको जो है वो उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइल करने में, क्लियर है, दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंपनी हैज नॉट सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड in the repayment of declared dividend to its shareholders or repayment of matured deposits, ठीक है। मतलब no subsisting मतलब containing defaults नहीं होने चाहिए सर, ठीक है। किसमें, पहला तो आपका आ जाएगा सर किसमें नहीं होना चाहिए हमारा, बताओ या फटाफट बताओ किसमें नहीं होना चाहिए। पहला आपका है in the payment of declared dividend, ठीक है, in the payment of declared dividend, just a second, yes, in the payment of declared dividend, ठीक है, to its shareholders. Next is repayment of matured deposits, ठीक है, repayment of matured deposits. Next one is आपका repayment of its preference shares, ठीक है, and or debentures, ठीक है, that become due for the redemption or payment of interest on such deposits or debentures or payment of dividend. Am I clear? तो इसमें भी आपका कंटिन्यू डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ये सब चीजों में आपका नहीं होना चाहिए, क्लियर है, यस। नेक्स्ट इज कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, देखो पॉइंट ई से जो है ना यहाँ से, सो यहाँ पे सारे कंपनीज के डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, उससे सारे लिंक्ड आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था नॉट डिफॉल्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द
वो सर पूरा आपका केस था, ठीक है। फिर आपका आया कि सर आप कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड में, रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स में, रीपेमेंट ऑफ आपका डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है, उनके रिडेम्पशन और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन और सच डिपॉजिट्स ऑफ डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, ठीक है। किसमें नहीं की होनी चाहिए सर कंपनी डिफॉल्ट? पहला डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज आपका रीपेमेंट, ओके, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और scheduled bank that has become repayable or interest payable there or on dues with respect to such statutory amount relating to its employees or any of the authority or default in crediting the amount of investor एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजों में भी सर आपका क्या नहीं होना चाहिए सर? कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए मेरी जान, ठीक है। यस, तो अमाउंट इन द अब और इन डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस में भी जो आपका क्रेडिट करने में आपका क्या नहीं होना चाहिए सर? डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? यस। नाउ कंपनी जो है पीनलाइज नहीं होनी चाहिए सर, कंपनी पीनलाइज नहीं होनी चाहिए। किसमें नहीं होनी चाहिए? पहला अच्छा बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, बट ऑब्वियस है, ठीक है, बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल कंपनी को पेनलाइज नहीं कर सकता, मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ द ऑफेंस अंडर कौन कौन से एक्ट है? फटाफट से याद रख लेना एक्ट का नाम, ठीक है। पहला आपका आ जाएगा आरबीआई, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सेबी, ठीक है, पहला आपका आ जाएगा आरबीआई, सेकंड आपका आ जाएगा सर सेबी, ठीक है, थर्ड आ जाएगा सर आपका सिक्रा, थर्ड क्या आ जाएगा सर आपका सिक्रा, फोर्थ आ जाएगा सर आपका फेमा, फोर्थ क्या आ जाएगा सर आपका फेमा, एंड लास्ट इज एनी अदर स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो बताओ यार फटाफट से कौन कौन से एक्ट में ट्रिब्यूनल या कोर्ट जो है वो कंपनी को पेनलाइज नहीं कर सकती, तभी जो है वो कंपनी जो है वो इशू कैन इशू द डीवीआरस, ठीक है। फर्स्ट इज आरबीआई, सेकंड सेबी, थर्ड सिक्रा, फोर्थ फेमा और एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो आरबीआई, सिक्रा, सेबी, फेमा और एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सब रूल 2, ठीक है, द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसमें आता है सर? किसमें आता है? सो देखो सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, और पोस्टल बैलेट इन परसुएंस टू पोस्टल बैलेट किसमें था? पोस्टल बैलेट किसमें था? सेक्शन 110 में था ना, सेक्शन 110 में था पोस्टल बैलेट, सेक्शन 102 में था आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है, आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 102 दिया है, और ऑफ द पोस्टल बैलेट क्यों दिया है यहाँ पे? सिर्फ 102 भी तो मेंशन कर सकता था ना, पोस्टल बैलेट नहीं करना था। क्यों पोस्टल बैलेट किया है सेक्शन 110? बिकॉज ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था, कंपनी की अगर सिक्योरिटी जो डीवीआरस वाले इक्विटी शेयर्स है, मतलब ठीक है, जो डीवीआरस वाले इक्विटी शेयर्स है, अगर वो लिस्टेड हो रही है तो आपको क्या करना है सर? अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट था। तो इसीलिए यार यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया सर? पोस्टल बैलेट इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 110 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। क्या क्या आपको मेंशन होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो डीवीआरस के थ्रू, 1 2 3 4, कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो डीवीआरस, ठीक है, विद डीवीआरस विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सर परसेंटेज ऑफ द शेयर्स, सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट करना है यार, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू टोटल पोस्ट इशू शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज सर रीजंस और जस्टिफिकेशन फॉर सच इशू, क्यों कर रहे हो सर? आपके नॉर्मल शेयर्स भी तो इशू थे ही ना सर, वोटिंग वाले भी तो इशू मतलब आपके लिस्टेड थे ही, या तब भी वो इशू कर रहे थे, तो आप डीवीआर क्यों इशू करना चाहते हो, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू give the justification, the reasons you have to specify, okay. next is the price at which the shares are proposed to be listed. क्या आप एट पार में करोगे, मतलब जितने का है उतने का ही, 10 रुपए का है तो आप 10 में ही करोगे, या तो प्रीमियम में करोगे, 10 का 12 में, 15 में, 20 में, 25 में, वैसे, ठीक है। सो द प्राइस एट विच आप इशू करना चाहते हो, ठीक है, क्या आप पार में करना चाहते हो कि प्रीमियम में करना चाहते हो। नेक्स्ट इज आपका द बेसिस ऑन विच द प्राइस हैज बीन अराइव्ड एट, ठीक है। आप अगर लेट सपोज यू आर सेइंग कि विल इशू द डीवीआरस वन शेयर कॉस्टिंग 35,
ओके, सो 35 आपका आया कहां से? क्या ये 10 मतलब आपका 10 रुपीज मेन शेयर का अमाउंट है प्लस 25 रुपीज आपका प्रीमियम है, कि 25 शेयर का अमाउंट है, 10 रुपए प्रीमियम है, कि 30 शेयर का अमाउंट है एंड 5 रुपीज प्रीमियम है, कि आपका पूरा ही 35 रुपीज जो है आपका लेट सपोज एट पार में आप इशू कर रहे हो, क्या है सर, कैसे आप डिराइव किए, कैसे आप इस अमाउंट में पहुंचे? ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू, details of total number of shares been proposed to be allotted to promoters, directors और KMPs। ठीक है, मतलब अगर आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो सर, तो आपका कितने शेयर्स जो है प्रपोज करना चाहते हो टू बी अलॉटेड टू प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP। ठीक है, 3 लोगों के नाम याद रखना सर, प्रमोटर्स, PDK। ठीक है, PDK promoters, D for directors, K for KMPs। Clear? Yes. And details of total number of shares proposed to be allotted to the persons other than PDK। ठीक है, promoters, directors, KMP and their relationship if any with the promoters, directors और KMP। ठीक है, कोई दूसरे पर्सन को आप कितना कर रहे हो सर, उसके डिटेल्स तो दो यार, उसके डिटेल्स तो दो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो, द रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और KMPs। ठीक है, अच्छा रिजर्वेशन से अपन क्या समझते हैं? रिजर्वेशन से व्हाट यू अंडरस्टैंड? रिजर्वेशन देखो, लेट सपोज जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, ठीक है, तो इसमें भी आपका रिजर्वेशन आता है, राइट? कि यार STs के लिए मतलब जो कैटेगरीज है, ठीक है, तो उनके लिए आप STs, SBs या OBCs के लिए जो आप इतना स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में वुमेन्स के लिए भी होते हैं कि एटलीस्ट 5% या 10% सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स ओनली। ठीक है, कुछ भी हो जाए वुमेन्स को 5% 10% सीट्स तो मिलेगी ही मिलेगी, रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ठीक है, सो अगर पब्लिक इशू कर रहे हो, ठीक है, अगर उस केस में अगर आपको कोई रिजर्वेशन है, सो फॉर डिफरेंट एप्लीकेंट्स जो आप कर रहे हो इंक्लूडिंग आपका PDK, ठीक है, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP। नेक्स्ट इज द percentage of voting rights for which equity share capital with differential voting rights shall carry the total voting rights in of the aggregate of equity share capital। क्या बोला सर, वापस से पढ़ते हैं, द परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स, ठीक है ना, which the equity share capital with differential voting rights shall carry to the total voting rights in aggregate of the equity share capital। भैया वो शेयर कैपिटल में आपका DVR, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले कितना परसेंटेज कैरी करेंगे, वो आपको परसेंटेज भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका स्केल और प्रोपोर्शन इन विच द वोटिंग राइट्स ऑफ सच क्लास और टाइप्स ऑफ शेयर शेल वेरी। ठीक है, बताओ ऐसे कितने में आप वेरी करोगे? भैया एक को आप 10 दे रहे हो, एक को आप 20 दे रहे हो, एक को 30 दे रहे हो, भाई कैसे, मतलब प्रोपोर्शन आपको स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द चेंज इन कंट्रोल in the company that may occur subsequent to the issue of equity shares with DVRs। ठीक है, तो आपका लेट सपोज अगर पहले प्रमोटर लोगों का कंट्रोल था एग्जांपल 50%, तो अभी आप जब DVR इशू कर रहे हो, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर आप इशू कर रहे हो, तो 40% से जो पहले प्रमोटर लोगों का था एग्जांपल स्टेक 40% था, तो 40% से क्या वो 30% हो गया? क्या वो 60% हो गया? कितना, मतलब क्या वेरी हुआ है? चेंज इन कंट्रोल, कंट्रोल में क्या चेंज आया है आफ्टर द इशू ऑफ DVR, आफ्टर द इशू ऑफ DVR। एम आई क्लियर? यस। नेक्स्ट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर परसुएंट टू द इशू ऑफ सच शेयर कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई गेस आप लोगों ने यार ये CM में पढ़ा होगा, अभी जो ओल्ड सिलेबस था CS एग्जीक्यूटिव का, तो उसमें ग्रुप 2 में ऑब्जेक्टिव पेपर जो था, ठीक है, तो उसमें वी आर स्टडी आपका पूरा ये चैप्टर ही है अलग से। ठीक है, तो डाइल्यूटेड इक्विटी पर शेयर परसुएंट टू, तो ये आपको कैलकुलेट कैसे करना रहेगा सर? आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल AS रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज आपका प्री एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग अलोंग विद द वोटिंग राइट्स। ठीक है, एज पर क्लॉज 35 ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट इशूड बाय द SEBI from time to time। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, मतलब एग्जिस्टिंग जो आपकी इक्विटी शेयर्स है, ये क्या बोलना चाह रहा है, एग्जिस्टिंग जो आपकी इक्विटी शेयर्स है,
ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वाले को आप डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आपने कोई ऑलरेडी कोई डीवीआर वाला कन्वर्ट कर रखा है तो उसको आप नॉर्मल वाले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू द इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल राइट्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ this was the subsection, I mean, sub rule 3. Okay, now coming to rule 4, that is sub rule 4. Okay, the board of directors shall inter alia disclose its board report. अभी आपको पता है क्या, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब का सीजन है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर ये पूरा सीएस का जो आता है, तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाज कंप्लीटेड, द फॉलोइंग डिटेल्स। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी को फॉलोइंग डिटेल्स, जिस साल में आपने इक्विटी शेयर्स पे डीवीआर आपने इशू किया है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपके बोर्ड रिपोर्ट में। क्या, पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विथ डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स मतलब टोटल कितने शेयर्स अलॉट किए हैं सर, कितने शेयर्स आपने टोटल अलॉट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल राइट्स रिलेटिंग टू द वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड। ठीक है, कितने कितने डिफरेंशियल जो राइट्स है जो रिलेट कर रहा है आपकी वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड में, तो उसके आपको जो डिटेल्स आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका द परसेंटेज ऑफ द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स टू द पोस्ट इशू इक्विटी शेयर्स कैपिटल with differential rights issued at any point of time and percentage of voting rights which the equity shares with differential, just a second, let वापस एक बार पढ़ते हैं, just yeah, the percentage of the shares with differential rights to the post issue of what equity share capital with DVRs issued at any point of time and percentage of the voting shares which the equity shares with the DVRs shall carry to the टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल। मतलब आपने जो इशू किया है सर, आपने जो इशू किया डीवीआर, ठीक है, आपने जो परसेंटेज आपने जो इशू किए आपने शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है ना, तो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो आपने इशू किए है सर, ओके, तो इस केस में सर, इस केस मतलब सर, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका पोस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसके बाद में जो आप डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो आप इशू करोगे, ठीक है, प्लस प्लस इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स जो नॉर्मल वाले हैं, ठीक है, तो दोनों का जो प्रोपोर्शन है सेम होना चाहिए। ठीक है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए। जो क्लॉज सी है वो ये बोलता है। नेक्स्ट इज आपका द प्राइस एट विच द शेयर्स हैज बीन इशूड। भाई कितने प्राइस में आप शेयर इशू करते हो सर, कितने में। ठीक है, नेक्स्ट इज अपना द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और केएमपीज टू हुम द शेयर्स आर इशूड। ठीक है, अगर आपके कोई चेंज, कंट्रोल के चेंज कोई आया है, आपके कंट्रोल में कोई चेंज हुआ है आफ्टर द इशू ऑफ डीवीआरस वाले शेयर्स, तो वो आपको मेंशन करना है, वो आपको बताना है। ठीक है, फिर डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो आप करोगे तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है सर, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड एएस। ठीक है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल एएस होगा प्रिस्क्राइब जो, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट issue shareholding pattern along with the voting rights in the format specified under sub rule 2 of rule 4। ठीक है, तो आपका जो मतलब इशू करने से पहले, डीवीआर इशू करने से पहले का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था एंड उसको इशू करने के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है सर, अलॉन्ग विथ द वोटिंग राइट्स, जो आपको फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपका स्पेसिफाइड है उसमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल 4 सब रूल 5 में आपका क्या बोलते हैं सर, कि जो डीवीआर वाले, ठीक है, जो होल्डर्स है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले, तो वो क्या एंजॉय करेंगे सर, सारे राइट्स, लाइक बोनस शेयर्स का, राइट्स इशू का। ठीक है, तो सारे जो राइट्स है वो लोग इशू करेंगे। ठीक है, जो दूसरे नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है उन लोग को भी ये सेम राइट्स मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द डिफरेंशियल राइट्स विद which such shares have been issued। मतलब अगर उनको पहले कोई राइट, अगर उनका कोई डिफरेंशियल अगर राइट आ रहा है तो पहले आप उनको उसको फॉलो करो, फिर जो है
आप ये दूसरे जो है जैसे आपका बोनस शेयर्स हो गया, राइट शेयर्स हो गया, उसको आप जो वो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले अगर आपका कोई स्पेसिफाई कर रहा है तो आप उसको जो पहले स्पेसिफाई, मतलब उसको पहले आप फुलफिल कर लो, राइट्स को एंजॉय कर लो, ठीक है। देखो, द होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शेल एंजॉय ऑल अदर राइट्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू बोनस राइट्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एक्सेट्रा विच द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट इज अपना where the company issues equity shares with differential rights. The register of members maintained under section 88 of the Companies Act 2013 shall contain all the relevant particulars of the shares so issued along with the details of the shareholders, ठीक है। तो सेक्शन 88 में जो आप मेंटेन करते हो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो उसमें आपको जो पूरा मेंशन करना पड़ेगा डिटेल्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। आज अपन ने जितना भी सेशन में किया है सेक्शन 43 का पूरा, ओके। सो ये पूरा बैरेक्ट से ही अपन ने पढ़ा है सर, ओके। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड सी यू ऑल सून, ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।